بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اس ویڈیو میں 7ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ قواعد و انشاء کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کی جو ورک بک ہے اس میں صفحہ نمبر 42 سے صفحہ نمبر 46 تک جتنا کام دیا گیا ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے. سب سے پہلا کام ہے ہمارے پاس الفاظ متضاد. الفاظ متضاد وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کا الٹ ہوتے ہیں یا مخالف ہوتے ہیں، جیسے اچھا برا. خالی جگہ پر کیجئے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی. زیادہ لڑکے پاس ہوئے ہیں مگر کچھ فیل بھی ہوئے ہیں. اول سے آخر تک ساری کتاب پڑھو. ہمیشہ حلال اور حرام میں تمیز کرو. مہمان کا فرض ہے کہ میزبان پر زیادہ بوجھ نہ بنے. میزبان کا فرض ہے کہ مہمان کا خیال رکھے. اسی طرح آپ کے 2 کالم بھی دیے گئے ہیں. کالم الف میں کچھ الفاظ ہیں، کالم 2 میں ان الفاظ کے متضاد ہیں. ان کو جن کی ترتیب غلط ہے، آپ نے اس میں سے صحیح ترتیب والے الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور اس کے آگے لکھ دینا ہے. جیسے نمبر 1 پر ہے ابتدا، تو آپ کالم نمبر 3 میں لکھیں گے انتہا. ٹھیک ہے، کیونکہ کالم نمبر 2 میں انتہا دیا گیا، وہ بالکل لاسٹ میں دیا گیا، تو آپ نے ابتدا کا جو اپوزٹ ورڈ ہے، متضاد لفظ ہے، وہ کالم نمبر 3 میں بالکل اس کے سامنے لکھیں گے. ابتدا انتہا. اجالا اندھیرا. بیگانہ یگانہ. ادنا اعلیٰ. کثرت قلت. صلح جنگ. مقیم مسافر. بیٹا آپ کے جو پیج تھے اس میں یہ ایکٹیویٹیز الگ الگ دی تھی. جو متضاد کی 2 ایکٹیویٹیز تھیں وہ میں نے ایک ساتھ آپ کو کروا دی ہیں. اسی طرح نیکسٹ میں پھر مترادف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ کروا دیتی ہوں. جی بیٹا، اب ہم الفاظ مترادف کرنے جا رہے ہیں. مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں یا ایک ہی جیسے معنی رکھتے ہوں، یعنی ایک ہی چیز کے 2 نام بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے کوئی ایسا لفظ جس کا معنی اسی کے ہی سیم میننگ میں آ رہا ہو، سیم اس کے معنی میں آ رہا ہو، تو وہ لفظ اس کا مترادف کہلائے گا. جیسے آفتاب کا مترادف ہے خورشید. ظلم کا مترادف ہے ستم. انسان اور بشر ہم معنی ہیں. حرارت اور تپش ایک دوسرے کے مترادف ہیں. احمق اور بے وقوف ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی سیم میننگ، ہم معنی. اسی طرح سے آپ نے کالم کو بھی میچ کرنا ہے. کالم 1 میں اور کالم 2 میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں لیکن ترتیب غلط ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. کالم 1 میں عداوت پہلا ورڈ ہے، اس کا عداوت کا مترادف ہے بیر، تو آپ نے اس کو نمبر 3 میں لکھنا ہے. تاجور تاجدار. فرماروا حکمران. آشیانہ گھونسلہ. ہجر فراق. مدح ستائش. آس امید. جی بیٹا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں غلط فکرات کی درستی. جو سینٹینسز اس ایکٹیویٹی میں آپ کو دے دیے گئے ہیں اس میں کہیں املا کی غلطی موجود ہے، اس کو آپ نے پہلے سرکل کرنا ہے، دائرہ لگانا ہے اور پھر اس کی جگہ پر صحیح لفظ لکھنا ہے. جیسے ہمارے پاس پہلا جو جملہ ہے، ہمارے اردو کے استاد بہت قابل ہیں، اس میں جو قابل ورڈ ہے وہ کاف سے لکھا ہوا ہے، اس کو آپ نے سرکل کیا اور اس کی جگہ پر آپ نے کاف، جو 2 ڈاٹ والا کاف ہوتا ہے وہ لگانا ہے. ہمارے استاد اردو کے استاد بہت قابل ہیں.
सेब का मुरब्बा सेहत के लिए मुफीद होता है। अब मुरब्बा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वो मुरब्बा जो मुरब्बा निकाला जाता है उसमें मुरब्बा लिखा जाता है, बे हे, मीम रे बे हे, मुरब्बा। क्योंकि ये वाला जो मुरब्बा है ये स्क्वायर के मीनिंग में जाता है, जो चौकोर चीज होती है उसको हम मुरब्बा चीज शक्ल कहते हैं, ये शक्ल है, शेप का नाम है। जबकि मुरब्बा जो चीज का बनाया जाता है, फ्रूट्स का बनाया जाता है, वो मुरब्बा लिखा जाता है, मुरब्बा नहीं लिखा जाता। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। इसमें फेल को वर्ड को आपने सर्कल करना है, इसमें फेल लिखना है, आइन से फेल नहीं होता बल्कि ये से फेल लिखा जाता है। खूब नेकियां करो और सवाब कमाओ, स्वाद से सवाब नहीं होता, इसको आप सर्कल करें, इसमें से सवाब, खूब नेकियां करो और सवाब कमाओ। कायद आजम पाकिस्तान के बानी थे, ये जुमला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है बेटा। नंबर 6 पर आपके पास है, इस कुर्सी की कीमत 99 रुपए है, इसको आप सर्कल करें, 99 वर्ड गलत है, यहाँ 99 वर्ड आएगा, ठीक है। 99 वर्ड नहीं होता, 99 सही वर्ड होता है, 99। जी बेटा, हमारे अगला जो टॉपिक है, हमारा उन्वान है, वो है तख्लीकी लिखाई। बेसिकली तो ये बेटा आपके खुद के करने का काम है। आपने एक मजमून लिखना है जिसका उन्वान है तालिब इल्म के फ़राइज़, कि एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट के क्या फ़राइज़ होने चाहिए। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स दे देती हूँ, जिनको आपने मजीद उस हर पॉइंट के बारे में कुछ मजीद लिखना है, जिससे आपका एक बहुत अच्छा सा ऐसे रेडी हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वो है वक्त की कदर करना या पाबंदी वक्त। एक तालिब इल्म के फ़राइज़ में सबसे पहले ये शामिल है कि वक्त की कदर करे, वक्त को ज़ाया ना करे, हर काम को वक्त पे करे। अगर वो अपने दिन का एक पूरा टाइम टेबल, एक टाइम स्केड्यूल बना लेता है, तो उसके मुताबिक काम करने से वो हमेशा तरक्की की तरफ, कामयाबी की तरफ जाएगा, नाकामी उसके पास कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वह एक-एक वक़्त के एक-एक लम्हे की कदर करेगा। इसी तरह से वो कामयाबी हासिल कर सकेगा। अगर वो वक़्त की कदर नहीं करेगा तो उसका कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा, मुकम्मल नहीं होगा। अगला पॉइंट है शौक से इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करने का मतलब है कि आपने जो है आगाही हासिल करनी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के कहने पर या किसी के दबाव में या ज़बरदस्ती इल्म हासिल कर रहे होते हैं, बल्कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इल्म हासिल करने ये है कि अल्लाह ताला के नज़दीक आपका रुतबा बुलंद हो जाता है। इंसान का अल्लाह ताला ने रुतबा सिर्फ इल्म की वजह से ही बढ़ाया है, क्योंकि फरिश्तों पर भी इसको फ़ौक़ियत हासिल हो गई। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा फरिश्तों से करवाया गया सिर्फ इल्म की ही वजह से। तो इल्म हासिल करना, शौक़ से इल्म हासिल करना जो है वो तालिब इल्म के फ़राइज़ में शामिल है। इसके बाद हम लिख सकते हैं वालिदैन और उस्ताज़ा की इज़्ज़त करना। ये तो तालिब इल्म का फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन की और उस्ताज़ा की इज़्ज़त करे, क्योंकि जब तालिब इल्म पढ़ता है और अपने माँ-बाप और अपने उस्ताज़ा की इज़्ज़त करता है, तो उनकी दुआओं से उसका वो जो पढ़ाई है उसमें बरकत हो जाती है, उससे उसको फ़वाइद हासिल होते हैं। ना बजाय इसके कि वो वालिदैन और उस्ताज़ा की बेइज़्ज़ती करे या उनकी इज़्ज़त ना करे, कदर ना करे और फिर पढ़ाई की तरफ रट्टे लगाता रहे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि तालीम उसको वो फ़ायदा नहीं देगी जो माँ-बाप की दुआएँ और उस्ताज़ा की दुआएँ उसको फ़ायदा देंगी। अगला पॉइंट आपके पास है दोस्तों और हम जमातों के साथ मददगार होना। एक तालिब इल्म को अपने क्लास में जितने उसके स्टूडेंट दोस्त होते हैं, जो आपके हम जमात होते हैं, उनके साथ मददगार होना चाहिए, वफ़ादार होना चाहिए, उनका ख़्याल रखना चाहिए। क्योंकि आप एक दिन का ज़्यादा हिस्सा अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुज़ारते हैं, तो आपने उनकी हर तरह से मदद करनी है, ताकि वो मदद जो आप उनकी कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आप अपनी मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि वही स्टूडेंट्स कल को आपके भी काम आते हैं। लिहाजा इंसान का यही सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात है इंसान के लिए, कि वो इंसान के दिल में दूसरों के लिए जज्बा हमदर्दी होता है, और यही फ़र्क है जानवरों और इंसानों में। अगला पॉइंट है अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए वर्जिश करना। अगर तालिब इल्म अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो वो सही इल्म हासिल कैसे कर पाएगा, वो सही तरह से पढ़ कैसे पाएगा,
उसकी सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग की जो है वो अलामत है। अगर एक आपकी सेहत अच्छी है तभी आप अपना वक़्त जो है प्रॉपर तरीके से डिवाइड भी करेंगे, प्रॉपर तरीके सही तरीके से आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे और से अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना वर्जिश करनी ज़रूरी है। अगला पॉइंट है समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना। एक तालिब इल्म के फ़राइज़ में शामिल है कि पढ़ाई निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं उनमें भी हिस्सा ले और वो भी उसके लिए उतनी ही फ़ायदेमंद होती हैं जैसे वो किताबी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। ये भी दोनों का साथ-साथ चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ किताबी कीड़ा बन के रह जाए और बाकी तमाम एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दें। नहीं, पढ़ाई के साथ-साथ आपको समाजी सरगर्मियों में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए। और नेक्स्ट है बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर लम्हा कोशिश करना। अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल कोई लम्हा, कोई वक़्त का कोई हिस्सा ज़ाया नहीं करना बल्कि अपने दिन का पूरे दिन का एक टाइम शेड्यूल बनाएँ और तालिब इल्म का फ़र्ज़ है कि वो अपने पूरे दिन को 24 घंटे को डिवाइड करे अपने तमाम रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तमाम ज़रूरियात के मुताबिक और उसमें एक-एक लम्हे को ज़ाया ना करे और उसमें जो फ़िज़ूल और बेफ़ायदा एक्टिविटीज़ होती सरगर्मियाँ होती हैं उनको अपने उस टाइम टेबल में से स्किप कर दे, निकाल दे। उसमें उन एक्टिविटीज़ को शामिल कर ले जो उसको फ़ायदा पहुँचाए। जी बेटा ये आपकी तख्लीकी लिखाई है। आपने ये जस्ट जैसे मैंने बोला ऐसे एज़ इट इज़ नहीं लिखना, आपने खुद से उसमें एडिशन करनी है, उसमें और चीज़ें डालनी हैं। इन्हीं पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आपने हर पॉइंट के बारे में कम से कम 3-3, 4-4 जुमले मज़ीद बोलने हैं और लिखने हैं अपनी वर्कबुक पर। जी मेरा बेटा, आपका घर का काम क्या है? घर का काम आपका यही है जो काम आपको करवाया गया है वो आपने लर्न करना है, वो आपने लिखना है और उसके साथ-साथ आपने आपकी जो काम है वर्कबुक का और इसी तरह से आपकी उर्दू की बुक्स का वो ख़त्म हो गया सिलेबस। ये आपकी लास्ट जो थी वर्किंग थी। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे और तमाम चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ करने के साथ-साथ लर्न भी करेंगे। इसी के साथ बेटा अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों का और रमज़ान के रोज़े रखने हैं, खूब अफ्तारी में ज़्यादा पकोड़े नहीं खाने और अपने उस्ताज़ा को भी अपने दुआओं में याद रखना है और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात जल्द ही होगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रिवीजन करेंगे। गुड बाय एंड गुड लक।